कबीर हज काबे हम जाए था, आगे मिलया खुदाई। साईं मुझ स्यों लर परिया, तुझे किन फरमाई गाय। कबीर हज काबे होए गया, केती बार कबीर। साईं मुझ में क्या खता, मुखों न बोले पीर। कबीर जी जो मारे जोर कर, कहते हैं जो हलाल। दफ्तर दई जब काढ़ है, होएगा कौन हवाल। कबीर जोर किया सो जुल्म है, ले जवाब खुदाए। दफ्तर लेखा नीक से, मार मोहे मोह खाए। कबीर लेखा देना सुहेला, जो दिल सूची होए। उस साचे दीवान मह पल्ला न पकड़े कोई। जुगो जुग टल चवर छत्र तक दे मालक, हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर। सर्वे कायनात दे प्रतिपालक, गुरता गति दे सुभाएमान। धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ की पावन पवित्र हजूरी अंदर बैठ करके रबी बाणी दे कीर्तन का रस आनंद माणिया है। आओ शब्दी बाणी दी विचार अंदर जुड़ना करिए। तो विचार की रंगता तो पहला गुरु बख्शी फतेह सांझी करो, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भगत बाणी दी चल रही लड़ीवार विचार विचों भगत कबीर साहिब जिन्हां दे श्लोकां दी विचार रोजाना चल रही है। विचार अधीन अज जिन्हां श्लोकां दा असीं हुणे पाठ साझा कीता है, इस दे पहले श्लोक विच कबीर साहिब जी ने कृपा कीती है। कबीर हज काबे हों जाए था, आगे मिलया खुदाई। कबीर साहब आखन लगे जिवें इस्लाम जगत के लोग जिहड़े ने इन्हां नूं धार्मिक तौर ते एक हिदायत की गई है कि कोई भी इस्लाम मुसलमान धर्म नूं मनण वाला वो एक बारी अपनी जिंदगी के अंदर काबे दा मक्के दा हज करन वास्ते जावे, यात्रा करन वास्ते जावे।
ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਾ ਲਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਹਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹਲਾਲ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਸ ਅੱਗੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢੁਕਾ ਕਰਕੇ ਆਖੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਖੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਹਜ ਕਾਬੇ ਹੋਂ ਜਾਏ ਥਾ, ਕਾਬੇ ਦਾ ਹਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਆਗੇ ਮਿਲਿਆ ਖੁਦਾਏ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਖੁਦਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਜ ਕਾਬੇ ਦਾ ਹਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਮੁਰਝਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਈਂ ਮੁਝ ਸਿਉ ਲੜ ਪਰਿਆ, ਤੁਝੇ ਕਿਨ ਫਰਮਾਈ ਗਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਖਸਮ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਗਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਸਾਈਂ ਮੁਝ ਸਿਉ ਲੜ ਪਰਿਆ, ਤੁਝੇ ਕਿਨ ਫਰਮਾਈ ਗਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਹਜ ਕਾਬੇ ਹੋਏ ਗਿਆ, ਕੀਤੀ ਬਾਰ ਕਬੀਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਈਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਬੇ ਦਾ ਹਜ ਕਰਨ ਤੁਰਿਆ, ਪਰ ਸਾਈਂ ਮੁਝ ਮਹਿ ਕਿਆ ਕਤਾ, ਮੁਖੋਂ ਨਾ ਬੋਲੇ ਪੀਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੌਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ, ਕਰਮਾਂ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਗਾਂ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਦੇ ਜੀਵ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ। अगले श्लोक में कबीर साहब जी ने फिर आख देता है, कबीर जी जो मान है जोर कर कहते हैं जो हलाल। ਜਿਹੜੇ ਲੋग जोर कर धक्के दे नाल जोर अजमाइश करके किसी जीव नूं मार देंदे ने ते कहते हैं जो हलाल, ते आखते ने भी ये हलाल है, भी खुदा दे घर विच प्रवानगी हो गई है, दी कुर्बानी हो गई है। दफ्तर दई जब काड है होएगा कौन हवाल। इहो जे पाप कर्म दा जदों हिसाब होना है ते कहन लगे भी होएगा कौन हवाल। जदों उथे दफ्तर लग्या ते उथे जदों ये गल पूछी जानी है भी तुझे किन फरमाई गाए, ते कहन लगे भी तब होएगा कौन हवाल। ते फिर की हाल होगा इस गल नूं सोच। कबीर जोर किया सो जुल्म है ले जवाब खुदाए। कबीर साहब आखन लगे भाई जोर किया सो जुल्म है, किसी जानवर नूं तू मार दिता है, जोर अजमाइश की है, किसी बेजुबान जानवर की बलि दे दी। ले जवाब खुदाई, ये जुल्म है, ये पाप है, धर्म नहीं। तो खुदा जवाब मंगेगा। ते फिर दफ्तर लेखा नीक सै मार मुह मुह खाए। तो जो दफ्तर दे विच तेरा लेखा निकलिया, तेरा कर्म निकल गया, प्रगट हो गया, ते कहने लगे मार मुँह मुँह खाए, तो तेरे मुंह ते फिर मार पाएगी, चोट पाएगी। भी तैनू अपना मनुखा जीवन सवारन वास्ते दिता सी, मनुखा जीवन तैनू बंदगी वास्ते सिमरन वास्ते मिलिया सी, पर तू देखा देखी स्वांग धर भूले पटका खाही कर्मा कांडा विच पै गया। तो इस गल का भुलेखा खा लिया भी शायद किसी जानवर की कुर्बानी देना रब खुश हो जाता है, खुदा खुश हो जाता है। बिल्कुल गलत गल है, ये जुल्म है, ये पाप है, ये कोई धर्म नहीं है। तो कबीर साहब जी ने इन्हां 4 श्लोकों में इस गल का जिक्र किया है, जीवन जात बख्शिश की है कि परमात्मा खुदा नूं प्रसन्न करने वास्ते किसी जानवर नूं ना मारिया जाए, सगों कबीर लेखा देना सुहेला जो दिल सूची होए। कहन लगे भी जदों रब दे घर विच लेखा देना उदों तू सुखी तां हो सकदा है, उदों लेखे दे दंड तो तू तां बच सकदा है जो दिल सूची होए। किसी जानवर की कुर्बानी देने की बजाय तेरा अपना हिरदा पाक सुच्चा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। ये खुदा अगे भेंट कर। परमात्मा दे घर अगे, परमात्मा दे दर विच, खुदा दे घर दे अंदर जो दिल सूची होए, जदों हिरदा सुच्चा होएगा, पवित्र होएगा, ते लेखा देना सुहेला फिर सुहेला होएगा। ते फिर चेता रखना इस गल नूं, उस साचे दी बाण मह पल्ला न पकदै कोए। कबीर साहब आखन लगे असल अंदर जदों मनुख का हिरदा सुच्चा होवे, पाक पवित्र होवे, ते फिर उसनूं परमात्मा की कचहरी विच पल्ला ना पकड़े दा कोई अर्थ है भी कोई इतराज नहीं करेगा, कोई रोक टोक नहीं होगी। उत्थे तैनूं मारिया नहीं जाएगा, उत्थे तैनूं सज़ा नहीं दी जाएगी। जो दिल सूची होवे, जे तेरा हिरदा पाक है, पवित्र है, नेक अमल तेरे जीवन का आधार है, रब्बी नाम नूं जीवन का आसरा तू बनाया है, तां तेरा लेखा देना सुहेला, फिर तेरा लेखा देना सुहेला हो सकेगा। नहीं तो फिर
जोर किया सो जुल्म है ले जवाब खुदाए, नहीं तो फिर तब होएगा कौन हवाल, तेरा हाल चंगा नहीं होगा, माड़ा होगा। तो जीवन जाच भगत कबीर साहब जी आज इन्हां श्लोकां विच बख्शिश हकाते हुए इन्हां 5 श्लोकां दे विचार नूं असीं साझा कीता कि केंद्री भाव एक वारी साझा करके समाप्ति करने हाँ। कबीर साहब किरपा करदे ने कि परमात्मा दे नाम दे उत्ते, खुदा दे नाम दे उत्ते किसी जानवर की बलि देण दी बजाए अपना पाक पवित्र हिरदा मालक अगे रख भेंट कर, फिर तेरा ये मत्था टेकिया होया प्रवान हो जाएगा, फिर तेरा खुदा दे दर ते परमात्मा दे घर विच आया कुर्बान होगा जे हिरदा तेरा पाक पवित्र है, साफ है। कबीर लेखा देना सुहेला जाओ, दिल सूची होए साचे दीवान में पल्ला न पकड़े कोई, रबी दीवान अंदर परमात्मा दे घर अंदर तेनों कोई फिर रोक टोक नहीं होगी जे तू हिरदा पाक पवित्र लै करके पहुंचा। तो मालिक मेहर करे जिथे असी रोजाना की जीवन जाच विच कपड़े साफ सुथरे पहनते हाँ, शरीर नूं साफ सुथरा रखीदा है, उत्थे मालिक घर परमात्मा के दर विच आउण लग्गिया शरीरक क्रिया नूं ते साफ करदे, शरीर नूं ते साफ करना ही है। पर हजूर आखदे ने इत्थे प्रवानगी उन्हां लोकां नूं है जिहड़े हिरदे विचों भी पाक पवित्र ने, साफ ने। दिलों मुहब्बत जिन सही सच्चिया, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया, जिन्हां दे हिरदे विच मुहब्बत है, परमात्मा प्रति प्यार है, भरोसा है, विश्वास है, कहने लगे भी वो सच्चे ने, परमात्मा दे दर ते कबूल हुंदे ने, प्रवान हो जाते हैं। पर जिन्हां दे मन विच कुछ होर है ते जिन्हां दी शरीर दे बाहरी क्रिया दिसदी कुछ होर है, कहने लगे भी वो झूठे हैं, वो परमात्मा दे घर विच कदी प्रवान नहीं होंदे। तो तां करके जीवन जाच जो भगत कबीर साहब जी ने सानू इत्थे बख्शिश की है, पाक पवित्र हिरदा ये मालिक अगे भेंट किया जाए, प्रभु के दर ते पाक पवित्र हिरदे की कोई कदर पैंदी है। तो गुरु मेहर करे असीं भी अपने जीवन क्रिया नूं सोधदਿਆਂ होया अपना हिरदा भी पवित्र बनाइए, मन अंदरों द्वैत ईर्खा माड़ा भाव किसी का बुरा करना इहो जिहियां सारियां पाप दियां मंदियां विचारां नूं छड्ड करके सच दी विचार अपने हिरदे विच टिकाइए। समय की समाप्ति है, कोईयां बेअंत भुलां दी खेमा आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।